Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Naman Sharma, currently pursuing BC with SEM from IIPS. In this video, we have solved my data science end semester paper. Let us talk about all questions. First, explain how unstructured data is transferred into a format suitable for machine learning model. Summarize the importance of legal classification in the context of grievance abstract feature from text complaint data. Transforming unstructured data from machine learning. अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को मशीन लर्निंग में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा सच एज टेक्स्ट, ऑडियो और इमेजेस need to be converted into a structured numerical format for machine learning model. Unstructured data टेक्स्ट में भी हो सकता है, ऑडियो, इमेज, वीडियो, इन सब में हो सकता है। वो उसको कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर डाटा में अपने को मशीन लर्निंग मॉडल की जरूरत पड़ती है। द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इनटू सेवरल स्टेप। ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए अपने को अलग अलग स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट, डाटा प्री प्रोसेसिंग। पहले डाटा को प्री प्रोसेस करना पड़ता है, उसके अंदर आएगा सब टॉपिक में टेक्स्ट डाटा इंक्लूड क्लीनिंग टास्क। साफ करना पड़ता है पहले डाटा को, लाइक रिमूविंग स्टॉप वर्ड रिमूव करने पड़ते हैं, लाइक दीज, माई, दे। पंचुएशन रिमूव करने पड़ते, एंड स्पेशल कैरेक्टर भी अपने को रिमूव करने पड़ते हैं उसमें से, जैसे कि एट द रेट, हैज की, एंड सो ऑन। लोअर केसिंग टेक्स्ट, लोअर केस के टेक्स्ट, एंड स्टेमिंग ऑन लेमिटाइजेशन। अदर फॉर्मेट फॉर इमेजेस रीसाइजिंग एंड नॉर्मलाइज फॉर ऑडियो। इमेज को पहले रिसाइज करना पड़ता है, नॉर्मलाइज करने के लिए ऑडियो को एक्सट्रैक्टिंग फीचर लाइक मेल फ्रीक्वेंसी, कॉन्सेप्चुअल कॉन्फिजेंट, MFCCS. Second, feature extraction, converting the raw data into feature. raw data को convert करना पड़ता है feature में. First, text, convert word into numerical representation. Technique like word को numerical representation में कैसे convert करें. First, bag of word, count word occurrence in a document. TF-IDF, term frequency, identical difference frequency. Consider term frequency and invert document frequency to emphasize unique terms. Word embedding, technique like word to word, globe, or fast tag create sense context awareness vector representation action of word. Third, images, use pixel value or apply feature extraction like conventional neural network. Audio, convert waveform into spectrogram or exact relevant patterns. Third, vectorization and scaling, convert feature into numerical vector. फीचर को कन्वर्ट करना पड़ता है न्यूमेरिकल वेक्टर जो मशीन लर्निंग के लिए होता है, एंड नॉर्मलाइज देम टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, और नॉर्मलाइज करना पड़ता है जिससे यूनिफॉर्मिटी इंश्योर हो। फोर्थ, डायमेंशनलिटी रिडक्शन इफ नीडेड, use technique like PCA or TNs to reduce the number of features while retaining important information. Importance of legal classification in grievance retrieval. Legal classification in grievance retrieval is crucial for first, efficient storing and routing. इसमें आएगा कैटेगराइजिंग कंप्लेंट बेस्ड ऑन लीगल इशू, मतलब कंप्लेंट को कैटेगराइज करना पड़ता है उस इशू के हिसाब से। इंश्योर दैट दे रीच द अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट फॉर द रिजोल्यूशन, जिससे उसमें सही से अपन उस पर केस अप्लाई कर पाए, जैसे आईपीसी या बीएनएस किसके अंडर आता है वो। सेकेंड, प्रिपटराइजेशन, certain grievance like those related to fundamental right or urgent violation can be expedited based on their classified. थर्ड, कंसिस्टेंसी इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग कंसिस्टेंट होना चाहिए। अ स्ट्रक्चर्ड लीगल फ्रेमवर्क इनेबल कंसिस्टेंट हैंडलिंग ऑफ सिमिलर ग्रीवियंस। फोर्थ, डाटा इंसाइट एंड ट्रेंड्स, आइडेंटिफाइंग रिक्वायरिंग लीगल issues help improve policies, regulation, and the grievance handling process. Fifth, comprehensive and accountability, ensure otherwise the legal standard and track resolution for the audit and transparency. Next, use TF, IDF or word embedding to extend feature from complaint text. अब इन दोनों का को कैसे एक्सट्रैक्ट करें अपन कंप्लेन में, ये दोनों फीचर। पहला, TF, IDF। TF का फुल फॉर्म होता है टर्म फ्रीक्वेंसी एंड IDF का
इन्वर्ट डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। अब इनके पर्पस क्या है? हाईलाइट इंपॉर्टेंट टर्म इन डॉक्यूमेंट फाइल। इंपॉर्टेंट टॉपिक को वो हाईलाइट कर देते हैं। डाउन वेट कॉमन टर्म अक्रॉस मल्टीपल डॉक्यूमेंट। प्रोसेस क्या होती है इसकी? टीएफ की, टीएफ आईडीएफ की। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ टर्म इन अ डॉक्यूमेंट। कैलकुलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी को इन टर्म ऑफ डॉक्यूमेंट के अंदर। सेकेंड, कंप्यूट द इनवर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द टर्म अक्रॉस ऑल डॉक्यूमेंट। फिर कंप्यूट करते हैं इनवर्स फ्रीक्वेंसी को ऑल डॉक्यूमेंट टर्म में। Multiply TF and IDF for each term, creating a vector representation of document. Multiply करते हैं TF और DF को हर टर्म में और फिर क्रिएट करते हैं एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट के लिए। यूज केस इन कंप्लेंट। कंप्लेंट में केस कैसे यूज करते हैं? एडजेक्ट कीवर्ड और सिग्निफिकेंट टर्म फॉर कंप्लेंट टैग्स इनेबलिंग क्लासिफिकेशन मॉडल टू डिफरेंशिएट कंप्लेंट ऑन देयर कंटेंट। अब वर्ड एम्बेडिंग के क्या एग्जांपल होते हैं? वर्ड टू वर्ड, ग्लोब और बीट। वर्ड टू वर्ड मतलब जैसे जो उधर का विक्टिम था उसने वर्ड टू वर्ड बता दिया कि कैसे वो चोरी हुई, क्या हुआ, उसको वर्ड टू वर्ड बोलते हैं। पर्पस क्या है इसका? कैप्चर सिमेंटिक मीनिंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड इन डेंस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। प्रोसेस क्या है इसकी? ट्रेन अ मॉडल ऑन अ लार्ज compute to generate embedding where semantically similar word have similar vector representation. Context embedding. Example bait. Consider word meaning based on sentence context. Question number 2. With reference to life cycle of a data science project, complete the following table of life cycle of data. स्टेज, इसमें 9 स्टेज है टोटल। फर्स्ट, डिफाइन द प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। क्लियरली आर्टिकुलेट ऑब्जेक्टिव में इसमें क्लियरली आर्टिकुलेट द बिजनेस प्रॉब्लम एंड ट्रांसलेट इट इनटू अ डाटा साइंस प्रॉब्लम। पहले बिजनेस की प्रॉब्लम को क्लेरिफाई करना है, फिर उसको ट्रांसलेट करना है अपने को डाटा साइंस के प्रॉब्लम में। इसकी की डिटेल्स है, अंडरस्टैंड द बिजनेस कंटेंट एंड गोल्स। टूल्स है इसके बिजनेस इंटेलिजेंस टूल लाइक टेबुलर, पावर बीआई। सेकंड, डाटा कलेक्शन। गैदर रिलेवेंट डाटा फ्रॉम वेरियस। डाटा को अपन बहुत तरह के सोर्स से कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे गूगल है, अमेजोन है एंड सो ऑन। आइडेंटिफाई डाटा सोर्स इंटरवल, एक्सटर्नल एपीआईज, कलेक्ट डाटा यूजिंग एप्रोप्रिएट टेक्निक्स। इसके टूल्स है पाइथन लाइब्रेरीज, एग्जांपल पांडास एंड नमपाई। थर्ड, डाटा एक्सप्लोरेशन एंड प्री प्रोसेसिंग। अब डाटा को एक्सप्लोर करना है, प्री प्रोसेस। अंडरस्टैंड एंड क्लीन द डाटा। इसमें पहले डाटा को समझते हैं फिर क्लीन करते हैं। एक्सप्लोर डाटा यूजिंग स्टैटिकल समराइज एंड विजुअलाइजेशन। हैंडल मिसिंग वैल्यूज। इसके टूल्स आएंगे पाइथन लाइब्रेरीज, एग्जाम्पल पांडास, नमपाई, सीबर्न, मैटप्लॉटलिब। फोर्थ, फीचर इंजीनियरिंग। क्रिएट न्यू फीचर और ट्रांसफॉर्म एग्जिस्टिंग वन। इसमें न्यू फीचर क्रिएट करते हैं अपन, जैसे ऑब्जेक्टिव आएंगे डिराइव न्यू फीचर फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस। टूल्स आएंगे पाइथन लाइब्रेरीज, इसमें भी पांडास, नमपाई, स्किट लर्न। फिफ्थ, मॉडल सिलेक्शन एंड बिल्डिंग। चूज एंड ट्रेन एप्रोप्रिएट मॉडल्स। सिलेक्ट सुटेबल एल्गोरिथम। स्प्लिट डाटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट्स। टूल्स आएंगे इसमें पाइथन लाइब्रेरी, स्किट लर्न, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्क। सिक्स, मॉडल इवैल्यूएशन। इसमें मॉडल परफॉर्मेंस को अपन एक्सेस कर सकते हैं। इवेल्युएट मॉडल परफॉर्मेंस ऑन द टेस्टिंग सेट यूजिंग एप्रोप्रिएट मॉडल्स। इसमें टूल्स आएंगे पाइथन लाइब्रेरीज लाइक स्किट लर्न, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्क। सेवन, मॉडल डिप्लॉयमेंट। इंटीग्रेट द मॉडल इनटू अ प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। इंटीग्रेट करना पड़ता है मॉडल को प्रोडक्ट इन्वायरमेंट के लिए। Deploy the model as a verb, science, APIs or a batch process monitor model performance in real time. Tool है इसके cloud performance, example AWS, GPS, etc. Monitoring and maintenance. Track model performance and update as needed. Monitor model performance over time. Detect concept drift, data drift. इसके टूल्स हैं मॉनिटराइजिंग टूल्स, क्लाउड परफॉर्मेंस, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। क्लाउड प्लेटफॉर्म का अपन एग्जांपल देख ही लिए पहले ऊपर, AWS, GPS एंड सो ऑन। 9, कंप्यूटेशन एंड रिपोर्टिंग, प्रेजेंट फाइंडिंग एंड इंसाइट्स, क्रिएट क्लियर एंड कंसाइज रिपोर्ट्स, विजुअलाइजिंग रिजल्ट इफिशिएंटली।
business intelligence tools, example Tableau, Power BI, presentation tool, and PowerPoint. Question number 3. Explain the role of text mining in automating grievance residual system. Text mining का रोल क्या होता है ऑटोमेटिक grievance residual system में? List the step involved in pre-processing अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को प्री प्रोसेस करने की स्टेप्स भी लिखना है. टेक्स्ट माइनिंग पहले क्या होता है? टेक्स्ट माइनिंग अ सब फील्ड ऑफ डाटा माइनिंग. टेक्स्ट माइनिंग एक सब फील्ड होता है डाटा माइनिंग का. प्ले अ क्रूशियल रोल इन ऑटोमेटिक ग्रीवियंस रेसिडुअल सिस्टम. जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रीवियंस रेसिडुअल सिस्टम में बाय इनेबलिंग द एनालिसिस इन इंटरप्रिटेशन ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट डाटा. दिस टेक्नोलॉजी कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंटली process and categorize large volume of customer feedback, complaint and ये जो टेक्नोलॉजी होती है ये ऑर्गेनाइज और प्रोसेस करती है लार्ज वॉल्यूम ऑफ कस्टमर की फीडबैक के लिए. जैसे अलग अलग पे फीडबैक डली रहती है किसी वेबसाइट पे या किसी और साइट पे, इस टाइप की फीडबैक. जैसे अमेजोन पे अपन किस चीज को परचेस करें तो उसकी फीडबैक लोग नीचे डालते हैं कि कैसा है आइटम. की बेनिफिट ऑफ टेक्स्ट माइनिंग इन ग्रीवियंस. अब उसके की बेनिफिट क्या है? फर्स्ट, इफिशिएंट कैटेगराइजेशन. इफिशिएंट कैटेगराइज होता है जैसे कि ऑटोमेटिकली कैटेगराइज ग्रीवियंस बेस्ड ऑन देयर कंटेंट. ऑटोमेटिकली कैटेगराइज हो जाता है ग्रीवियंस ऑन देयर कंटेंट के हिसाब से. एलोइंग फॉर क्यूकर राउटिंग. एलो रहता है क्यूकर राउटिंग के लिए. एंड असाइन टू अप्रोप्रिएट, वो असाइन हो जाता है अप्रोप्रिएट उसके हिसाब के डिपार्टमेंट के साथ. Sentiment analysis. Identify the emotional tone of grievance, helping to personalize critical issues and understand customer satisfaction level. Topic modeling. Discover underlying themes and patterns within the text data, enabling organizing to identify common issues and potential area of improvement. अभी इसमें नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन भी होता है एंड नॉलेज बेस्ड क्रिएशन भी होता है. की स्टेप्स इन प्री प्रोसेसिंग अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट. अब अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट डाटा को प्री प्रोसेस करने के लिए कौन कौन से स्टेप होते? पहले डाटा को कलेक्ट करना. अलग अलग वेबसाइट से डाटा को कलेक्ट करते हैं. फिर डाटा को क्लीन करना. उसके बाद जैसे स्टॉप वर्ड रिमूव करना, वर्ड एम्बेडिंग एंड सो ऑन. टेक्स्ट को भी नॉर्मलाइज करना, मतलब सिंगल सिंगल वर्ड को अपने को डबल कोटस में लिख के प्रॉपर टोकनाइज करना उसको. स्टेमिने एंड लिमिटाइजेशन, मतलब उसमें से जो वे यूजलेस वर्ड है या एक्स्ट्रा वर्ड है उनको रिमूव करना. फीचर एक्सट्रैक्शन, उनके फिर फीचर निकालना. जैसे बैग ऑफ वर्ड है उसको इग्नोर करना. टीएफ आईडीएफ को पता करना. वर्ड एम्बेडिंग एंड सो ऑन. फोर्थ, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझ जाना है और बेस फिट में कैसे होता है लीनियर रिग्रेशन. और ये जो 2 पॉइंट दिया उसके रिग्रेशन के इनको सॉल्व करना. फर्स्ट, पहले देखेंगे कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है. लीनियर रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड फॉर मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड अदर एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x. लीनियर रिग्रेशन होता है वो एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है यूज्ड करते हैं रिलेशनशिप बनाने के लिए जिसमें दो वेरिएबल x एंड y. इट एज्यूम दैट द रिलेशनशिप इज अप्रोक्सीमेटली लीनियर. एज्यूम करना है जैसे रिलेशनशिप approximately linear है, meaning y can be expected as linear function of x. y एक्सप्रेस करता है x के लीनियर फंक्शन को. इसका एक इक्वेशन लिखिए, y इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1x प्लस e. अब इसको बीटा 0 को क्या बोलते हैं? बीटा 0 इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन. बीटा 0 इंटरसेप्ट करता है लाइन को. वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0. y की वैल्यू जब x के इक्वल है तब. बीटा 1, स्लोप ऑफ द लाइन. बीटा 1 होता है स्लोप ऑफ द लाइन एंड e रिप्रेजेंट द एरर टर्म रिप्रेजेंटिंग द डेविएशन ऑफ एक्चुअल वैल्यूज फ्रॉम प्रीडिफाइंड वैल्यू. बेस फिट लाइन. द बेस फिट लाइन इज डिटरमाइंड बाय मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर SSE. SSE इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 ऊपर n yi माइनस y1 का टोपी y1 का बार स्क्वायर इक्वल. अब इसको नॉर्मलाइज करके लिख दिया yi की जगह yi को अपन ने बाहर कर दिया और yi का बाहर को b0 प्लस b1 xi का होल स्क्वायर.
यूजिंग द कैलकुलस का यूज करके कैसे कर दी उस मेथड को अपन डिराइव। बीटा वन इज इक्वल टू, ये इस टाइप से डिफाइन कर दी, बीटा जीरो इज इक्वल टू वाई बार माइनस बीटा एक्स बार मतलब एक्स को मीन करता है, वाई बार वाई को मीन करता है। अब इसके स्टेप्स क्या है एल्गोरिदम के, इनपुट द डाटा, पहले इनपुट लेना है डाटा, x इज इक्वल टू x1 अप टू xn एंड y इज इक्वल टू y1 से yn तक। कंप्यूट मीनिंग, फिर मीनिंग को कंप्यूट करेंगे x बार एंड y बार से, फिर कंप्यूट करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर द स्लोप, दोनों स्लोप में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंप्यूट करेंगे। कैलकुलेट द स्लोप ऑफ बीटा वन, फिर बीटा वन का स्लोप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द इंटरसेप्ट बीटा जीरो, फिर बीटा जीरो का इंटरसेप्ट कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये इक्वेशन ऑफ द लाइन है y बार इज इक्वल टू बीटा जीरो प्लस बीटा वन एक्स। प्रिडिक्ट करेंगे, यूज द इक्वेशन टू प्रिडिक्ट वैल्यू ऑफ y फॉर गिवन x। कंप्यूट रेसिडुअल yi माइनस y बार, इवेल्युएट करेंगे मॉडल को और आउटपुट आ जाएगा बीटा जीरो कॉमा बीटा वन एंड बेस फिट लाइन इक्वेशन। फिफ्थ, write an algorithm to create two cluster from first and write the output of round cluster। अब क्लस्टर किस में यूज होता है अपना, दो टाइप के क्लस्टर होते हैं, एक तो के मीन क्लस्टरिंग, एक हायरार्किकल क्लस्टरिंग। इसमें अपने को के मीन क्लस्टरिंग से सॉल्व करना है। टू क्रिएट टू क्लस्टर फ्रॉम गिवन सेट ऑफ नंबर वी कैन यूज अ क्लस्टरिंग एल्गोरिथम लाइक के मीन क्लस्टर। ये जैसा मैंने अभी बताया कि दो टाइप की क्लस्टरिंग होता है, इसमें अपन के मीन क्लस्टरिंग का यूज करेंगे। क्रिएटिंग टू क्लस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, k इज इक्वल टू 2। अब इसकी क्या एल्गोरिथम है पहले ये समझते हैं। इनिशियलाइज सेंट्रोइड, पहले अपने को सेंट्रोइड को इनिशियलाइज करना है। चूज टू इनिशियल सेंट्रोइड, दो रैंडम नंबर लेने जो अपने को k1 और k2 में डालने हैं। असाइन डाटा पॉइंट टू क्लस्टर, जैसा मैंने अभी बताया कि दो रैंडम पॉइंट उठा के अपने को क्लस्टर में पुट करने। अपडेट सेंट्रोइड, जैसे अपन ने दो पुट कर दिए और उसके बरोबर के आगे नियरेस्ट वैल्यू आ गई, तो उसके बाद उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर उसको अपने को अपडेट करना पड़ता है उस सेंट्रोइड को, और फिर वो न्यू सेंट्रोइड आता है, वो दूसरा सेंट्रोइड हो जाता है। रिपीट स्टेप 2 एंड 3, ये दोनों स्टेप को रिपीट करते जाना जब तक अपना आंसर नहीं आ जाता। अब स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे। इनिशियल सेंट्रोइड ले लिया पहले अपन ने 2 एंड 30, उसका राउंड वन, कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम ईच पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट कर दी, पहले 2 से कर दी फिर 30 से कर दी। असाइनिंग पॉइंट टू नियरेस्ट सेंटर, अब असाइन कर दिया अपन ने नियरेस्ट सेंट्रोइड पे, क्लस्टर 1 नियर 2, क्लस्टर 2 नियर 30। अपडेट कर दिया अपन ने सेंट्रोइड को, क्या आ गया अपने पास अप्रोक्स 7, 6.83 मतलब अप्रोक्स 7 के बराबर आ गया, तो सेंट्रोइड 2 के आ गया अपने पास 25। अब इस पे सेकंड किया अपन ने, सेकंड सेंट्रोइड लिया 7 एंड 25, उसमें भी सेम प्रोसेस करी, उसमें भी क्या आ गया अपने पास दो सेंट्रोइड, एक 7 आ गया एक 27, मतलब नो चेंज हो गए। तो अपने आगे कन्वर्जेंस में सेंट्रोइड नो लॉन्गर चेंज। फाइनल क्लस्टर क्या आ गया अपने क्लस्टर 1 में 2, 4, 10, 12, 2 और 11, क्लस्टर 2 में आ गए अपने पास 20, 30 एंड 25। दिस इज हाउ टू सॉल्व K-मीन क्लस्टरिंग ऑफ टू सेंट्रोइड। फाइनल आउटपुट लिख दिया अपन ने क्लस्टर 1 का, ये क्लस्टर सेंट्रोइड एक 7 क्लस्टर 1 हो गया, 25 क्लस्टर 2 हो गया। नेक्स्ट, एक्सप्लेन की डिफरेंस बिटवीन K-मीन क्लस्टरिंग एंड हायरार्किकल क्लस्टरिंग। डिफरेंस बताना है दोनों में, K-मीन और हायरार्किकल में, और एडवांटेज क्या होते हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग K-मीन क्लस्टरिंग के विजुअलाइज करने के लिए। पहले क्लस्टरिंग क्या होता है, क्लस्टरिंग इज द डाटा पॉइंट इनटू होमोजेनियस क्लासेस। क्लस्टरिंग एक डाटा पॉइंट होता है होमोजेनियस क्लासेस के अंदर। पॉइंट इन द सेम ग्रुप आर एज पॉसिबल, सेम ग्रुप में पॉइंट पॉसिबल हो सकते हैं। पॉइंट इन डिफरेंट ग्रुप आर डिसिमिलर एज पॉसिबल, डिफरेंट ग्रुप में पॉइंट पॉसिबल नहीं होते। K-मीन क्लस्टरिंग क्या होता है पहले, a K-मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम tries to group similar item into form of cluster। K-मीन क्लस्टरिंग होता है वो ग्रुप करता है सारे आइटम को इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर के। द नंबर ऑफ ग्रुप इज रिप्रेजेंट बाय k, जो नंबर ऑफ ग्रुप होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं k। इफ k इज इक्वल टू 2 है अपना, जैसे दो टेबल क्रिएट करनी, देयर विल बी 2 क्लस्टर, तो उसमें 2 क्लस्टर हो गए। इट इज अ सेंट्रोइड बेस्ड एल्गोरिथम, ये जो एल्गोरिथम होती है सेंट्रोइड बेस्ड होती है।
इसमें अपने को दो के लेने पड़ते, K1 एंड K2, उसके अपने को सेंट्रोइड निकालने पड़ते हैं। वेयर ईच क्लस्टर इज एसोसिएट विद द सेंट्रोइड, और जो क्लस्टर होता है वो एसोसिएट रहता है सेंट्रोइड से। ये डायग्राम है केमीन क्लस्टर। बिफोर केमीन में ऐसे रहते हैं, मतलब सब पॉइंट अलग अलग अलग, आफ्टर क्लस्टरिंग में वो असेंबल हो जाते हैं। अब हेरार्किकल क्लस्टरिंग क्या होता है? हेरार्किकल क्लस्टरिंग इज अनदर अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। हायरार्किकल क्लस्टरिंग भी एक दूसरी एल्गोरिथम होती है जो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में होती है, which is used to group enable data set into a cluster, also known as a hierarchical cluster. इसका यूज करते हैं ग्रुप बनाने के लिए अनेबल डाटा सेट को क्लस्टर में। इसको और क्या बोलते हैं अपन? हायरार्किकल क्लस्टर एनालिसिस और HCA। इन दिस एल्गोरिथम वी आर डेवलप हायरार्की ऑफ क्लस्टरिंग। इसमें अपन डेवलप करते हैं हायरार्की टाइप स्ट्रक्चर। दिस इज द डायग्राम ऑफ हायरार्की। इसमें कम हायरार्की है तो इसको नीचे तरफ एरो जा रहा है तो डिवाइस बोलेंगे, डिवाइन ऊपर जा रहा है तो एग्लोमेरेटिव। एडवांटेज क्या है हायरार्किकल क्लस्टरिंग के ओवर केमीन क्लस्टरिंग विजुअलाइजेशन? डेंडोग्राम विजुअलाइजेशन। पहले डेंडोग्राम विजुअलाइजेशन है इंट्रेसिव रिप्रेजेंटेशन। हायरार्किकल क्लस्टरिंग जनरेट अ डेंडोग्राम ट्री लाइक डायग्राम। ये डेंडोग्राम ट्री लाइक डायग्राम है। दिस डायग्राम को बोलते हैं डेंडोग्राम ट्री लाइक डायग्राम। Offer a clear and intuitive visual representation of hierarchical structure of cluster. Hierarchical structure. The dendrogram reveals nested cluster demonstrating how smaller cluster merge to form large one. जैसे अपन ने डायग्राम में अभी पहले देखा कि छोटा क्लस्टर बड़ा क्लस्टर कैसे मर्ज होते हैं आपस में। This hierarchical view in identifying underlying patterns and relationship within the data. Second, flexibility in cluster names. क्लस्टर में फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होती है? क्लस्टर के नंबर, डाटा ड्राइवन अप्रोच एंड एडेप्टिव क्लस्टरिंग से। फिर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स क्लस्टर शेप्स में एडेप्टेबिलिटी टू नॉन स्पेक्ट्रल क्लस्टर, डिपेरियल डाटा इनसाइट में रिलीविंग अंडरलाइंग पैटर्न्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।